Okay, students. See here. Last time we have started with the deposit mobilization by commercial bank. Okay, like how the banks is being mobilizing their deposits into the economic activity and how they are helping the economy to have the growth and development. So they have identified almost six sector, and among the six sector, which sector is the most important one who are contributing into the deposit mobilization by the banks. Okay, so कौन सा सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, दैट पार्ट वी हैव सीन. एंड देन वी हैव सीन लाइक विच आर ऑल द फैक्टर विच अफेक्ट्स द डिपॉजिट. मतलब it's all depend upon household saving habit and their banking habits. Okay, so as per that only it will going to depend whether the bank will be able to do the deposit mobilization or not. So this way we have seen the deposit mobilization, then we have seen the secondary functions of bank also. That part was over. Now we have to start with the next one here. It is about types of commercial bank. Okay, you all know like what is commercial bank. Now which are all these types of commercial bank that we have to see here. Commercial bank basically what are the what are the function they are doing here. They are, can anyone tell me here? If we'll talk about the commercial bank, so commercial bank generally क्या function करती है? You know what is central bank, ठीक है? तो सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक ये कॉन्सेप्ट बहुत फेमस रहता है. सो कैन एनीवन टेल मी हियर व्हाट डू मीन बाय द सेंट्रल बैंक? व्हिच आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक? व्हाट आर दे डूइंग बेसिकली? टेल मी स्टूडेंट, क्या वो काम करते हैं? किन चीज़ों के लिए कमर्शियल बैंक जाने जाते हैं? कैन एनीवन टेल मी? यस, मतलब क्या डिफरेंस है सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में? क्या डिफरेंस लगता है आप लोगों को? टेल मी. ओके, टेल मी व्हाट इज सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक का क्या रोल रहता है? कम ऑन स्पीक अप एवरीवन. व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रल मैम बैंक? सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक की तरह वो पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकता है ये सब। सेंट्रल बैंक बल्कि कमर्शियल बैंक को देखता है। हाँ, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करेगा, कोई भी पब्लिक वहाँ पे डायरेक्टली सेंट्रल बैंक के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा. दिस इज व्हाट द सेंट्रल बैंक. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कमर्शियल बैंक, सो कमर्शियल बैंक विल डायरेक्टली बी इन द, इट विल बी कनेक्टेड विद द पब्लिक. ठीक है, सो पब्लिक का जो भी डिपॉजिट है उसके बारे में जो भी डिसीजन है, okay, so whatever is the public needs, so that could be satisfied by the commercial bank with their different policies. तो ये जनरली कमर्शियल बैंक रहता है. सो क्या क्या फंक्शन किए जाते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग कैसे कमर्शियल बैंक को अलग अलग इसमें डिवाइड किया गया, दैट वी विल गोइंग टू से इट नाउ. ओके, सो टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक, इन दैट वन द फर्स्ट वन ईयर डिपॉजिट बैंक. देखो अभी in exams, like you know, like you people will not going to give any theoretical exam. Okay, so MCQ में कैसा आ जाएगा, like they will going to give you the option which is the function of which bank will be considered as deposit bank. तो उसमें चार ऑप्शन रहेंगे, which bank will be considered as industrial bank. So this way you should able to identify which bank will be the deposit, which bank will be the industrial bank. And to understand all those things you should understand the concept कि किस बेस के ऊपर it has been considered like this particular bank is a deposit or the industrial bank. Okay, so we have to understand the concept here. See, what is deposit? Pehla type they have taken it as a deposit bank. So what is deposit bank here? The most important types of deposit bank is the commercial bank. They have connection with the commercial class of people. These bank accept deposit from the public and lend them to the needy parties. Since their deposit are for short period only, this bank extend loans only for a short period. Ordinarily, these banks lend money for a period between 3 to 6 months. They do not like to lend money for long period or to invest their fund in any way in long term security. So what did you understood through this paragraph? Deposit bank basically किसको पैसा देने वाला है? Tell me here. To whom they will going to give the money? To whom they will going to lend the money? Who पब्लिक is a को दे needy रहा है या person, किसी ma'am? और को दे रहा है? Tell me. Public. हाँ, they Public, are ma'am. giving it to the public. Then what you understood? Deposit bank will going to provide the loan or to provide the money to the public. Will it be for the long term period or the short term period? Short term period, शॉर्ट ma'am. टर्म। पीरियड के लिए. सो वो शॉर्ट टर्म पीरियड मतलब कितना, क्या पीरियड उन्होंने बताया यहाँ पे? 3 to 6। Yes, थ्री it टू is for सिक्स the मंथ 3 to 6 months only. Okay.
So is this clear to you, student? This deposit will be for short period, or uske according they are lending the money to the other public, those who are in the need of money, and for them also they are providing it for the very short term period, that could be around 3 to 6 months only. So this is what your deposit bank. Now the industrial bank. Industrial bank क्या होता है? Industries require a huge capital for a long period to buy machinery and equipment. Okay, डिपॉजिट बैंक में कैसा कि थोड़े टाइम के लिए किसी को जरूरत है, so for that reason we have given the money, the bank will going to lend the money. But when we will talk about the industrial bank, so industrial bank basically industries को पैसा देती है, उनके लिए लोन प्रोवाइड करती है. And we all know, like whenever we are talking about the industry, so it is all like they are in the need of money, that could be the in the huge amount. So वो huge amount में किस लिए रहेगा? It can be for purchasing the machinery and the equipment. तो उसके लिए अगर वो ह्यूज अमाउंट में, सो दे नीड टू हैव दैट लोन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ओनली. ओके, so industrial bank helps such industrialists. They provide long term loans to the industries. Beside, they buy shares and debentures of companies and enable them to have a fixed capital. ओके, तो मतलब वो कैसे, अभी उन पैसा देना है तो उससे बेटर वो क्या करेंगे, और क्या करते हैं कि लाइक दे विल गोइंग टू बाय द शेयर्स एंड द डिबेंचर्स ऑफ दैट कंपनी, सो दैट वहाँ पे बैंक का भी इन्वेस्टमेंट रहेगा उसके अंदर. और एक फायदा क्या होता रहेगा, सपोज इफ दैट कंपनी शेयर्स एंड डिबेंचर्स वैल्यू विल गोइंग टू इंक्रीज, थ्रू दैट दे विल गोइंग टू गेट द हायर रिटर्न ऑल्सो, तो वो भी एक बेनिफिट रहता है उनके लिए. ओके, सो टू हैव द फिक्स कैपिटल, to get the fixed capital to the industry, so they are purchasing the shares and debentures of that companies also. Sometimes they even underwrite the debentures and shares of big industrial concern. The important functions of industrial bank are, they accept the long term deposit, they call differences समझ लो. They accept the long term deposit, they meet the credit requirement of industries by extending long term loans, and then again these banks advise the industrial firm regarding the sale and the purchase of shares and debentures. So it means what here? Though they are purchasing the shares and debentures of that particular industry, and by purchasing it, they are giving the fixed capital to the industries. Okay, but side by side, they are also guiding the industry की shares and debentures और उनको वहाँ पे किस जगह पे मतलब कैसा उसका वैल्यू बढ़ाना चाहिए, what exactly they need to do for their industry to grow. So that kind of a guidance is also given by the bank. Okay, the industrial bank play a vital role in accelerating industrial development. In India, after attainment of independence, several industrial banks were started with large paid up capital. They are the Industrial Finance Corporation, that is called IFC, the State Financial Corporation, that is called SFC, Industrial Credit and Investment Corporation of India, it is famously known, you people also knowing it, ICICI, then Industrial Development Bank of India, it is IDBI, Saving Bank. These banks were specially established to encourage thrift among small savers, and therefore they were willing to accept small sums as deposit also. They encourage saving of the poor and the middle class people. In India, we do not have such special institution, but post offices perform such function. After nationalization, most of the nationalized bank accept the saving deposit. Okay. तो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि ओके, इन शॉर्ट इफ आई हैव टू से कि लाइक व्हाट इज इंडस्ट्रियल बैंक, देन आपको एक सिंपल वर्ड में बोलना है कि इंडस्ट्रियल बैंक इज बेसिकली द बैंक हु आर प्रोवाइडिंग money for the long term period to the industrialists. So in what sometime they are buying the shares and debentures of the industries to give them the fixed capital asset. ओके, उनके लिए फिक्स कैपिटल क्रिएट करे करके वो कभी कभार उनका शेयर्स एंड डिबेंचर्स भी खरीदते हैं. आफ्टर बाइंग द शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इवन दे आर गाइडिंग द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑल्सो रिगार्डिंग शेयर्स एंड डिबेंचर. ये ध्यान में दो, ठीक है. तो यहाँ पे एक क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया जाता है. दूसरी बात ये होती है कि अगर उनको लोन पैसा देने से भी और एक उनके पास ऑप्शन होता है कि लाइक दे कैन गो, दे विल गोइंग टू परचेज द शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑल्सो. ये उन्होंने कहा है. Okay, and then they have given like after independence, कैसे industrial banks were started with the large paid up capital, so that way they have given the examples here. Okay, so this is what industrial bank. Is this clear to you, student? What is the difference between deposit bank and industrial bank? Tell me, आपको क्या difference वहाँ पे ज़्यादा note हुआ कि दोनों में क्या difference है? Tell me, student. डिपॉजिट बैंक पब्लिक को पैसे देता है और इंडस्ट्रियल हाँ, बैंक इंडस्ट्री
इसको देता है। Okay, and tell me about the period of वो भी lending. लॉन्ग टर्म के लिए, और डिपॉजिट बैंक शॉर्ट टर्म के लिए देता है। Yes, industrial bank providing for the long term and deposit for the short term. Very good, Nidhi. Okay, now the next one here, agricultural bank. Okay, see by this word only you will come to know कि ये बैंक जो रहेगा वो किसके लिए पैसा देता रहेगा. Okay, so agriculture has its own problems and hence there are separate banks to finance it. These banks are organized on cooperative lines and therefore do not work on the principle of maximum profit for the shareholder. देखो, generally deposit bank, industrial bank, they are having the objective of to earn money. It means to earn the profit. But when we'll talk about the agricultural bank, they don't have any objective of earning the profit. मतलब उनका ज़्यादा maximum profit earn करना है, ये बिल्कुल उनका मैम objective. आपकी आवाज हेलो, ब्रेक हो रही है। ओके, अभी अभी ठीक है, अभी आ रही है, स्मूथली आ रही है. यस, Yes, ma'am. हाँ, okay. Then these banks meet the credit requirement of the farmer through term loan. देखो वो कैसे लोन मतलब कैसे प्रोवाइड करते हैं पैसा. They are basically providing money to the farmers in the form of term loan. That could be दाखव ना. ठीक आहे, मग लिहून काढा आता. इतरांना दाखवण्यापर्यंत लिहून काढ. So they are providing money to the farmer in terms of loan. So वो कितने मतलब क्या लोन रहता है, तो that is short term के लिए, even for the medium term and even for the long term they are providing the loans to the farmer. Okay, so we have seen deposit में only for short term, industrial में only for long term, and agricultural bank short term, medium and the long term loans they are providing to the farmers. Okay, so there are two types of agricultural banks. One is the agricultural cooperative bank and then the land mortgage bank here. So cooperative banks are mainly for short period. For long period, there are land mortgage bank. Both these types of bank are performing useful functions in India. See, when we talk about the agricultural banks, it means they are providing, they are helping, they are lending the money for the agricultural sector. So as it is for the agricultural sector, so it means what here they are providing money to the farmers. So in what term they are providing? So that can be for the short term, medium term, and the long term also. They are providing the money, and their objective is not to earn the maximum profit here. Then again, they have classified agricultural bank into two types. One is the agricultural cooperative bank. Agricultural cooperative bank will be providing loan only for the short period. But if any farmer required a loan for the medium or the long term period, so they need to take it from the land mortgage banks here. Okay. सो पहले मतलब वहाँ पे फार्मर्स शुड एबल टू आइडेंटिफाई, मतलब वहाँ पे पूछना चाहिए फार्मर ने कि कौन सा लैंड मॉर्गेज का है, कौन सा एग्रीकल्चरल बैंक है करके, कोऑपरेटिव बैंक है. तो उसके अकॉर्डिंग हमें लिहून काढना आता आदित्य. तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे डिसीजन मतलब फार्मर्स कैन टेक अ लोन ईयर. इज दिस क्लियर स्टूडेंट? थ्री टाइप, डिपॉजिट, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल बैंक. समझ में आ रहा है आप लोगों को डिफरेंसेस? यस और नो? यस मैम। ओके, मैम एग्रीकल्चर वाला फिर से रिपीट कर निक्की बोलो. एग्रीकल्चर मैम फिर से रिपीट कर दीजिए. हाँ देखो, एग्रीकल्चरल बैंक में क्या रहता है कि बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए वो पैसा देती है. एंड देन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए पैसा देते हैं मतलब इट इज़ ऑब्वियसली फॉर द फार्मर्स दे आर प्रोवाइडिंग मनी. एंड उनके लिए एग्रीकल्चर बैंक के लिए देर इज़ नो अदर मतलब लाइक व्हाट वी कैन से रेस्ट्रिक्शन की शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है लोन, वैसा नहीं रहेगा. इफ़ यू वांट टू टेक अ लोन फॉर द शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म और फॉर द लॉन्ग टर्म, so for that period also they are providing you the loan. And the next thing, even they have classified their agricultural bank into two category. One is the agricultural cooperative bank and then the land mortgage bank. So when we are taking the loan from the agricultural cooperative bank, so they are giving you the loan only for the short term period. But if you are planning to take a loan for the medium term or for the long term, then you have to take it from the land mortgage bank here. Okay, so this is what for the agricultural bank, and their objective is not to earn the maximum profit. जनरली क्या होता है कि कमर्शियल बैंक जो रहते हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल बैंक है, डिपॉजिट बैंक है, ऑब्वियसली बाय चार्जिंग द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे विल गोइंग टू टेक they will going to earn the maximum profit. But when we'll talk about the agricultural sector, so they are not agricultural bank, so they will not going they will not be having the objective of earning the maximum profit here. Is this clear, Nikki? Yes. यस मैम. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन ईयर एक्सचेंज बैंक. अभी एक्सचेंज बैंक क्या रहता है?
These bank finance mostly for the foreign trade of a country. See, through this word only, exchange bank आपको एक आइडिया आना चाहिए कि मतलब यहाँ पे फॉरेन करेंसी की बात हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज की बात हो रही है. So when we need a foreign currency, when we need a foreign exchange, we need it when we are doing some kind of a import export activity, or when we are planning to go to the other country. So whenever we are in the connection with the other country or the foreign country, at that time we need to have that foreign currency. सो फॉरेन करेंसी जनरली फॉरेन ट्रेडिंग के लिए, तो तभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक्सचेंज बैंक मतलब ये बेसिकली फॉरेन ट्रेड के लिए ही रहेगा, उससे रिलेटेड किसी एक्टिविटी के लिए वहाँ पे पैसा दिया जाता रहेगा. सी, देयर मेन फंक्शन इज टू डिस्काउंट, एक्सेप्ट and collect foreign bills of exchange. They buy and sell foreign currency and thus help businessmen in their transaction. They also carry on the ordinary banking business too. ठीक है, तो एक्सचेंज बैंक क्या करता है, देयर व्हाट इज देयर मेन फंक्शन हियर, दे आर बेसिकली डिस्काउंटिंग, एक्सेप्टिंग एंड द कलेक्टिंग फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज. इट मीन्स वॉट एवर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटी वी हैव डन, और उसका जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन रहेगा विच शोज दैट लाइक यू नीड दैट मच करेंसी, तो वो एक्सेप्ट करता है एंड उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्काउंट देके या फिर जो भी रिक्वायरमेंट है उस वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो भी वहाँ पे एक्सपोर्टर या फिर इम्पोर्टर रहेगा उसको वो help करता है. It means they are helping to give them the foreign currency. Okay, to do that foreign currency and help the businessman in their transaction also. So यहाँ पे उन्होंने और एक कहा है कि बस मतलब इफ इट इज ऑफ एक्सचेंज बैंक, सो मतलब वो फॉरेन करेंसी से रिलेटेड ही काम करेगा, तो वैसा भी नहीं रहता है. जो भी ऑर्डिनरी बैंक जो जैसे काम करता है, इवन दे विल गोइंग टू वर्क एज अ ऑर्डिनरी बैंक ऑल्सो, कि चलो मतलब अपने पब्लिक से पैसा डिपॉजिट करवा के लोग मतलब सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट वगैरह वो सब ओपन करना जो नॉर्मल बैंक्स करता है वैसे भी उनका काम रहता है. बट if they are dealing with the foreign currency, so it will be coming into the exchange bank also. Okay, is this clear to you student? यहाँ पे लेकिन लोन के बारे में उन्होंने बोला नहीं है, whether they can take the loans and all. उनके लिए क्या रहता है कि as per the requirement, हम लोग लोन तो ले नहीं सकते फॉरेन करेंसी का, तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास बिल आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, तो उसको वो लोग एक्सेप्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे रिलेटेड टू फॉरेन करेंसी. ओके, इज दिस क्लियर टू यू स्टूडेंट? एक्सचेंज बैंक, यस, ऑल ऑफ यू, एकता, संदीप. Yes, ma'am. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन हियर, मिस, हाँ विकास, विकास तेरा बहुत ज्यादा नेट एकदम खराब है लगता है. यस, नाउ द नेक्स्ट वन हियर, मिसलेनियस बैंक. मिसलेनियस बैंक में देखो क्या क्या है. देर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ बैंक्स विच हैव अराइजन इन ड्यू कोर्स टू मीट द स्पेशलाइज्ड नीड्स ऑफ द पीपल. ठीक है, in England and America there are investment banks whose object is to control the distribution of capital into several uses. American trade unions have got labor banks where the saving of the laborers are pulled together. In London there are the London Discount House whose business is to go about the city seeking for bills of discount. There are numerous types of different banks in the world carrying on one or the other banking business. So miscellaneous bank it means exactly what? So miscellaneous bank मतलब क्या होता है कि लोगों के अलग अलग टाइप के नीड रहते हैं, तो बस उसी को ध्यान में देना है. मतलब this particular banks are basically focusing on those kind of needs only. लाइक फॉर एग्जाम्पल गोल्ड लोन है, मुझे गोल्ड के ऊपर लोन चाहिए, तो कोई एक बैंक रहेगा जो उसी रिलेटेड ज़्यादा अच्छा काम करता रहेगा और उसके रिलेटेड ही स्पेशलाइज रहेगा. ओके, somebody needs the loan for the education, तो few banks will be there कि they are basically behind providing the education loan to the public, ऐसा कुछ रहेगा. So miscellaneous bank मतलब according to the needs of the people the banks will going to perform their activity. सो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि इंग्लैंड एंड अमेरिका में किस टाइप के ऐसे स्पेशलाइज बैंक किए गए करके. बट फॉर इंडिया आई रियली डोंट नो मिसलेनियस बैंक में व्हाट एग्जैक्टली वी कैन से. कैन एनीवन गिव मी एन एग्जांपल फॉर द मिसलेनियस बैंक ऑफ इंडिया? आपको क्या लगता है इंडिया में ऐसा कौन सा स्पेशलाइज बैंक है कि जो इसके ऊपर काम करता रहेगा, कोई स्पेशलाइज मतलब लोगों के नीड्स के अकॉर्डिंग कुछ काम करेगा करके? कैन एनीवन टेल मी? यस, आपको चाहिए तो गूगल में सर्च करो, आपको क्या मिल रहा है तो बताओ मुझे. मिसलेनियस बैंक इंडिया का क्या रहेगा? Ma'am, cooperative bank. हाँ ओके, कोऑपरेटिव बैंक, लेकिन व्हाट स्पेशलाइज नीड दे आर सेटिस्फाइंग, मतलब एक्चुअली आपको क्या लगता है क्या स्पेशलाइज नीड वो सेटिस्फाई करते हैं? वी कैन सी द माइक्रो फाइनेंस. यस,
माइक्रो फाइनेंस मतलब छोटा छोटा लोन देना, एकदम कम अमाउंट वाला, 10,000 वाला, 15,000 वाला, जस्ट टू स्टार्ट द बिजनेस। वो भी एक रहता है ना कि एक छोटा, इवन अगर आप लोगों को एक सिंपल सा चाय की टपरी ओपन करनी है, या फिर वड़ा पाव का वड़ा पाव सेलर के लिए रिलेटेड ही कुछ काम करना है, तो उसके लिए भी मतलब छोटा फंड का अगर जरूरत रहेगा, सो दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय द माइक्रो फाइनेंस। ओके, सो मतलब यस, मतलब जो छोटे छोटे नीड्स है वो अगर सेटिस्फाई करने के लिए आ जाते हैं, सो उसका मतलब स्पेशलाइज में कहा, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस ही मैं आपको बोल सकती हूँ अभी के लिए तो एग्जांपल, कि माइक्रो फाइनेंस इज also related to financial institution only, and they are also providing loans to the public, but they are for they are providing loan for the small business। इवन अगर तुम्हारे मम्मी को घर पे टेलरिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो जैसे उनको एक सीविंग मशीन की ज़रूरत है कुछ, तो उसके लिए जो पैसा अरेंज, मतलब भले ही थोड़ा पैसा रहेगा, मेरे ख्याल से सीविंग मशीन कैन बी कमिंग अराउंड एट लेस देन 10,000 और 12,000 के आसपास में ही कुछ आती रहेगी। तो उतना पैसा भी अगर घर पे नहीं रहेगा, लेकिन आपको उससे रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए माइक्रो फाइनेंस विल गोइंग टू हेल्प यू आउट। एम आई राइट और नॉट स्टूडेंट? यस, आप लोगों ने अभी तक स्टडी किया है माइक्रो फाइनेंस क्या होता है करके? यस, ये आपने अभी तक Yes, ma'am. कोई कोई सब्जेक्ट में आके गया था माइक्रो फाइनेंस के बारे में? अभी तक नहीं। No, ma'am. Economic. विकास विकास को एक्चुअली प्रॉब्लम होता रहेगा, लेक्चर होते भी रहेंगे, उसने वो कॉन्सेप्ट सुना भी रहेगा, लेकिन उसका इतना इंटरनेट का इश्यू रहेगा, तो उसको वो भी नहीं पता रहेगा कि क्या हो रहा है करके, है ना विकास? यस, इज इट लाइक दैट? Yes, ma'am. ओके ओके ओके, चलो। वो रोबोट है मैम, रोबोट। मिसलेनियस बैंक मतलब यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइज नीड्स ऑफ द पब्लिक, उससे रिलेटेड वो बैंक बेसिकली काम करता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट हैज बीन कैटेगराइज इनटू थ्री पार्ट: कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड डेवलपमेंट बैंक। तो मतलब अपने यहाँ पे जो भी बैंक्स है, सो दे आर बेसिकली फॉर्मिंग इन थ्री कैटेगरी: कमर्शियल, कोऑपरेटिव एंड द डेवलपमेंट बैंक। कमर्शियल बैंक में also there are nationalized bank and the private bank. कोऑपरेटिव में the banks who are providing short term credit, the banks who are providing long term credit, and short term credit के लिए also it has been divided into two part: one is the agricultural credit and other one is the urban credit. And then in the development bank, मतलब जो इकोनॉमी के डेवलपमेंट के पर्पज के लिए बनाए गए हैं, so they are exim, export import related जो भी रहेगा, that will be satisfied by the exim bank, and then industrial bank, and then agricultural bank. So they are coming into your development bank here. Okay, is this clear to you student? Organizational structure? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so Yes, ma'am. look at the chart and tell me here. Reserve Bank of India is been categorized into three parts. Which are those three parts? Bolo student. Commercial bank, Hmm? cooperative bank, development bank. Very good, Priyanka. And then commercial bank has been divided into which two part? Nationalized private. Yes, very good, very good. Next one here, cooperative bank has been divided into which two credit? Short term, long term. Short term, long term. Yes, when we talk about the short term has been divided into which two part? Two, agricultural credit, urban credit. Very good. When we are talking about the development bank, so it has been divided into three parts. Which are those three parts? Exim, Exim, industrial, agriculture. यस, वेरी गुड, एक्जिम, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, अभी इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ सकते हैं आप लोगों का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज बीन डिवाइडेड इनटू नो विच स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन, ऐसा करके आ सकता है। तो वहाँ पे आपको बोलेंगे वो लोग कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक, मतलब इस पार्ट में कैटेगराइज किया है, या फिर कोई बैंक के नाम देके वो आपको कंफ्यूज करेंगे। सो देयर यू शुड एबल टू अंडरस्टैंड और एबल टू आइडेंटिफाई कि विच ऑप्शन विल बी करेक्ट वन ईयर। देन डेवलपमेंटल बैंक के लिए विच बैंक डजन कंसिडर, विच बैंक इज कंसिडर एज अ डेवलपमेंट बैंक, तो वहाँ पे तीनों में से एक ऑप्शन रहेगा, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, एक्जिम में से एक ऑप्शन रहेगा और बाकी तीन अलग रहेंगे। सो दिस वे यू पीपल शुड एबल टू आइडेंटिफाई विच बैंक इज कमिंग इनटू द developmental bank here. Okay, so let's start with the Reserve Bank of India. Let me see the timing first. Okay, still we have a time. Chalo, we can do it. See, the Reserve Bank of India, the RBI is the supreme monetary and banking authority in the country and has the responsibility to control the banking system in the country.
It keeps the reserve of all scheduled bank and hence is known as a reserve bank. Okay, Reserve Bank of India, everybody know they are. It is basically the central bank और central bank ये करके it is a supreme monetary authority, supreme monetary and the banking authority in the country. मतलब पूरा बैंकिंग सिस्टम का जो भी कंट्रोलिंग है उनको हैंडल करना है. दिस एवरीथिंग विल गोइंग टू डन बाय द आरबीआई ओनली. ओके, सो आरबीआई के पास जैसे लाइक वी पीपल पब्लिक आर कीपिंग सर्टेन डिपॉजिट इनटू द कमर्शियल बैंक, so the same way all the scheduled bank will going to keep their money into the Reserve Bank of India as a reserve, so therefore it has been called as a reserve bank. इसके लिए उसको रिजर्व बैंक कहा जाता है. ओके, एंड देन द पब्लिक सेक्टर बैंक. पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या आता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स एसोसिएट, उससे रिलेटेड जो भी रहेंगे that all will be coming into the public sector bank. Nationalized banks are also coming into the public sector bank. Regional rural banks sponsored by the public sector bank. मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक इट मीन्स व्हाट हियर, दे आर टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट बैंक्स जो हम लोग बोलते हैं ना, उस हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनलाइज्ड बैंक एंड देन द रीजनल रूरल बैंक हियर. देन द प्राइवेट सेक्टर बैंक. प्राइवेट सेक्टर बैंक में है ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक, फॉरेन न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक्स एंड बैंक्स इन इंडिया. मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक वी कैन से कि जो टोटली प्राइवेटाइज है, जिसके ऊपर मतलब व्हाट वी कैन से गवर्नमेंट स्केल नहीं है या फिर गवर्नमेंट का टोटली कंट्रोल नहीं है. गवर्नमेंट का टोटली कंट्रोल दैट वी कैन नॉट से बिकॉज ऑन प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑल्सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंट्रोलिंग. ओके, सो मतलब प्राइवेटाइज है वो, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि दिस बैंक विल बी कमिंग इनटू द प्राइवेट सेक्टर बैंक. नाउ देन द कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक. कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक दे आर बेसिकली फॉर द पब्लिक, वी कैन से ना फॉर एक पब्लिक के लिए रहता है कि उनके डेवलपमेंट के लिए रहता है. जो छोटा मोटा चीज़ का रिक्वायरमेंट है दे कैन ऑल्सो टेक इट फ्रॉम दैट बैंक, सो दैट इज कोऑपरेटिव बैंक हियर. तो उसके अंदर भी क्लासिफाइड किया गया है स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, लैंड डेवलपमेंट बैंक, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक. सो दिस आर द कोऑपरेटिव बैंक. नाउ द डेवलपमेंट बैंक. डेवलपमेंट बैंक बेसिकली उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि इकोनॉमी में डेवलपमेंट होना चाहिए. जो मतलब फॉर द स्पेशलाइज पीपल इन द सेंस कि दोज हु आर इंडस्ट्रियलाइज पीपल, दोज हु आर द फार्मर, ऐसे जो लोग रहेंगे, दोज हु आर द मतलब इम्पोर्टर और द एक्सपोर्टर, उनके लिए वहाँ पे पैसा देना है, उनके मतलब बिजनेस के लिए पैसा देना है, so that we will going to have the development. Okay, so they are providing the short term finance also and the long term also. So कौन से बैंक उसके अंदर आ जाते हैं? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज IFCI, देन IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, देन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी है, नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक्स ऑफ इंडिया. So what you understood here, development bank it means what here कि जो अलग different sectors are there in the economy और उनके development के लिए if somebody is working तो उनके लिए financial help करना, यही उनका objective रहता है, so that we will be able to have the development in our economy. So that is your development bank here. Is this clear to you? So there it has been shown into the 5 category. एक है RBI, second is public sector bank, then the private sector bank, and then the cooperative bank, and then the last one here development bank here. Is this clear to you student, all these 5 types? Yes. Yes, ma'am. Okay. प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग. प्रिंसिपल्स अभी देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग मतलब पहले आपको ये इसका मीनिंग होना चाहिए कि ये प्रिंसिपल्स मतलब क्या होता है. प्रिंसिपल मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि नहीं ये मेरा प्रिंसिपल है, हमेशा सच बोलना करके. तो वो मतलब तुम लोगों ने अपने लिए ऐसा डिसाइड किया कि नहीं मेरा यही ऑब्जेक्टिव है लाइफ का, कि मैं हमेशा सच्चाई से चलूँगी, जो रहेगा. ओके, जैसे कि नीडी लोगों को हेल्प करना, दिस इज व्हाट योर प्रिंसिपल्स. तो प्रिंसिपल्स इट मीन्स व्हाट हियर कि जो हम लोग अपने लाइफ के लिए रूल्स डिसाइड करते हैं कि नहीं मुझे ऐसे ही होना चाहिए, मुझे ऐसे ही करना चाहिए. सो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल. सो व्हेन वी से अबाउट द बैंकिंग प्रिंसिपल, मतलब क्या है यहाँ पे कि बैंकिंग अगर मैं स्टार्ट करती हूँ बैंकिंग बिजनेस, अगर मैं अपना कोई बैंक वहाँ पे इस्टेब्लिश करती हूँ, तो एज अ बैंक मेरा प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, मेरे कौन सा वहाँ पे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जिस ऑब्जेक्टिव के बेस के ऊपर ये प्रिंसिपल्स के ऊपर ही मेरा बैंक वहाँ पे चलना चाहिए. तो क्या रूल्स उनको फॉलो करने हैं और वो जो उनका बेस है वो किस बेस पे वहाँ पे इस्टेब्लिश होना चाहिए, दैट वी विल गो टू सी फॉर द बैंकिंग. सो प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग, अगर कोई भी बैंक है तो उनका पहला प्रिंसिपल क्या रहता है, लिक्विडिटी होना चाहिए.
So liquidity is an important principle of bank lending. Bank lend for short periods only because they lend public money which can be withdrawn at any time by the depositor. They therefore advance loans on the security of such assets which are easily marketable and convertible into cash at शॉर्ट नोटिस. देखो लिक्विडिटी का मीनिंग क्या होता है, एकदम पहले मुझे आप लोग ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय द लिक्विडिटी? टेल मी हियर. मैम जो एसेट्स और शेयर्स को मतलब कैश में कन्वर्ट करके देगा. यस, ठीक है, मतलब कैश, हम लोग बोल सकते हैं कैश के बाद लिक्विडिटी, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द कैश हियर. तो बैंक का मेन प्रिंसिपल क्या होता है कि वहाँ तुम्हारा अगर बैंक वहाँ पे इस्टेब्लिश है तो बैंक के पास लिक्विडिटी होना ही चाहिए. You cannot say like if any of the depositor is coming and he's asking for the money, he's asking for the cash, and आप लोग उसको ऐसे बोल ही नहीं सकते हो एज अ बैंक की नहीं मेरे पास अभी पैसा नहीं है करके आप कल आ जाओ करके. You cannot refuse any of the customers. So therefore when we are starting with the bank, you should have liquidity in your bank, and this is your first principle. अगर कोई भी बैंक रिफ्यूज करता है लिक्विडिटी के लिए, किसी के डिमांड का, खुद का पैसा कोई डिमांड करे कि मुझे मेरा पैसा है मुझे अभी वो दे दो कैश के फॉर्म में, यू कैन नॉट रिफ्यूज एनी ऑफ द पर्सन, एनी ऑफ द कस्टमर टू लाइक सेइंग कि अभी थोड़ा रुको करके 2 घंटे के बाद पैसा आ जाएगा बैंक में. You cannot even tell that those things. Whenever the people are demanding, you should able to give them the cash here. So this is what the principle of banking. The first one है liquidity. जो भी बैंक है पहली बात है उनके पास कैश हमेशा अवेलेबल होना ही चाहिए. Okay. Now the second one is safety. The safety of funds lent is another principle of lending. Safety means that the borrower should be able to repay the loan and interest in time at regular intervals without default. The repayment of the loan depends upon the nature of security, the character of the borrower, his capacity to repay, and his financial standing here. Okay. So यहाँ पे सेफ्टी मतलब क्या, बैंक का सबसे बैंक का जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है इट इज द सेफ्टी वन. तो सेफ्टी मतलब क्या होता है यहाँ पे कि तुम लोग अगर किसी को पैसा दे रहे हो, मतलब एज अ बैंक इफ यू आर गिविंग मनी टू द अनदर पर्सन, तो आपको वो भी गारंटी हाथ में रखना चाहिए एज अ बैंक दैट मनी विल कम बैक टू यू. ओके. अगर आपको लगता है कि सपोज इन बिटवीन उस आदमी का कुछ हो जाता है जो भी रहेगा, तो उसने वहाँ पे कुछ सेफ एज अ सेफर, कुछ सेफर साइड कुछ दे के रखा है क्या. जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हाउसिंग लोन जब हम लोग लेते हैं, तो हाउसिंग लोन में जो भी अपना घर का डॉक्यूमेंट जो रहता है वो टोटली बैंक के पास रहता है, अगर बैंक हमें उस घर के ऊपर लोन दे रहा है करके. एंड व्हेन वी आर रीपेइंग ऑल दिस लोन एट दैट टाइम ओनली द बैंक विल गोइंग टू गिव दैट फाइल्स टू यू. जो हाउस आपके घर का जो फाइल है वो तब भी आपको रिटर्न मिलता है. तो वो क्यों अपने हाथ में रखते हैं? अगर आप वो पैसा नहीं दे पाए बैंक को, आपने जो हाउसिंग लोन लिया वो हाउसिंग लोन अगर आप पूरा नहीं कर पाए, तो हाउसिंग प्रॉपर्टी टोटली बैंक के कंट्रोल में रहती है, और वेन एवर दे नीड, अगर वो पैसा रिकवर नहीं कर पाते तो वो आपका घर बेच सकते हैं. सो दिस इज व्हाट द सेफ्टी है. सो सेफ्टी इज द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग. सो आप बैंक हो और जस्ट प्रॉफिट कमाना करके लोन देते जा रहे हो लेकिन कोई गारंटी नहीं पैसा रिटर्न आएगा या नहीं करके, दैट वे यू कैन नॉट परफॉर्म योर एक्टिविटी. सो एज अ बैंकिंग you should also think about the safety of your bank. Okay. Now the third one here, diversity मतलब यहाँ पे क्या है देखो, in choosing its investment portfolio, a commercial bank should follow the principle of diversity. commercial bank के पास principle of, अच्छा सैयद व्हाट इज, हाँ सैयद मरियम बी सिंह, लिक्विडिटी मीन्स बताओ. अच्छा मरियम बी, लिक्विडिटी इट मीन्स व्हाट, कैश. कैश होना चाहिए, बैंक को हमेशा अपने पास कैश अवेलेबल रखना चाहिए. बैंक किसी भी कस्टमर को रिफ्यूज नहीं कर सकता इफ दे आर डिमांडिंग द कैश. किसी भी मतलब दोज हु आर द डिपॉजिटर इन दैट बैंक एंड दे आर कमिंग एंड दे आर आस्किंग फॉर देयर ओन मनी, at that time bank cannot say like we don't have money, so therefore they need to keep the liquidity with them, they need to keep the cash with them. Okay, Mariam B, able to understand? Yes? Hmm. Okay. See, we are talking about the diversity now. In choosing its investment portfolio, commercial bank should follow the principle of diversity. It should not invest its surplus funds in a particular types of security, but in different types of security. It should choose the shares and debentures of different types of industry situated in different regions of the country.
The same principle should be followed in the case of state government and the local bodies. Diversification aims at minimizing risks of the investment portfolio of a bank here. See, यहाँ पे diversity मतलब क्या कि investment करना. You cannot always invest into the one type of a security, but you should invest in a different types of security. जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जब अगर हम लोगों को कोई शेयर्स खरीदना है तो किसी एक ही कंपनी का शेयर्स नहीं खरीदना, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का शेयर खरीदना, कि कभी अगर कोई एक कंपनी लॉस में भी चला गया तो वहाँ पे बाकी जगह से आपको पैसा आने का चांसेस रहेगा। अगर लेकिन आपने वही एक कंपनी में पैसा अपना बहुत इन्वेस्ट किया और वही कंपनी लॉस में चला गया तो आपका पूरा का पूरा पैसा चला जाएगा। सो दैट वे प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग क्या होता है कि डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी में आप लोगों को वहाँ पे अपना जो भी सरप्लस फंड है, बैंक का जो भी एडिशनल फंड है वो इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, जनरली यू पीपल हैव सीन मेनी लाइक ड्यूरिंग दोज डेज that the many banks are getting shut down, ठीक है, बैंक्स बंद हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द नॉन परफॉर्मिंग असेट। क्यों नॉन परफॉर्मिंग असेट वहाँ पे आ रहे? बिकॉज इट हैज़ बीन फाउंड दैट द मेनी ऑफ द बैंक्स आर गिविंग लोन्स टू द वन पर्टिकुलर पीपल, और भले वो पॉलिटिकल प्रेशर में देते रहेंगे लेकिन वो दे रहे थे, और पॉलिटिकल प्रेशर में दे रहे थे लेकिन जिसको दिया वो रिटर्न ही नहीं कर रहा है करके अगर वो सिचुएशन कंटिन्यूसली रहा और उसने कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी एज ए गारंटी करके नहीं दिया है, then obviously we will going to have the many like huge amount of non performing asset और उसको रिकवर करना डिफिकल्ट हो जाता है। और जैसे कि आरबीआई ने ऑलरेडी बोला हुआ है दैट यू शुड हैव द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी, हाउ कम यू आर गिविंग द मनी टू द वन पीपल वन पर्सन और टू द वन कंपनी ओनली, ठीक है। तो वो एक रूल्स वो तुम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हो आरबीआई का, तो अल्टीमेटली आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है और आपको बंद करना पड़ता है बिकॉज आरबीआई एज यू आर नॉट फॉलोड द रूल्स गिवन बाय द आरबीआई, तो आरबीआई भी आपको वहाँ पे उस जगह पे हेल्प नहीं करता है। ओके, तो डाइवर्सिटी मतलब क्या, एक ही जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है एज अ बैंक, सो दैट यू विल नॉट गोइंग टू फेस losses by one of the companies if it is getting shut down. Yes, everyone, please somebody, I think no, this one, who is that? Nidhi, can you please take the screenshot of attendance and send it to me? Yes, Nidhi, Yes, please do ma'am. that. Please do that. It shows less than 1 minute. Then we'll have to leave the lecture. And all of you see now only 30 students are, almost 40 above students का admission हो चुका है and only 30 students are coming. Just see and ask your other friends to join if they are if you know like they have taken the admission. ठीक है, बोलो बाकी लोग को भी बराबर रेगुलरली ज्वाइन होने के लिए। ठीक है, चलो, shall I end the lecture student? Nidhi, you just send me the screenshot. Okay, चलो, bye student. Bye, ma'am. Okay, bye all of you.